منظر کی موت جگر خراش ہے، تمہیں حق ہے کہ اس کی یاد میں بےتاب رہو۔ اگر منظر کے جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اگرچہ منزل کی موت نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، مگر منزل کی موت سے زیادہ جگر خراش خانہ کعبہ کا جلنا ہے۔ میں ان دونوں صدموں پر عزادار ہوں۔ یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا باعث مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ رخصت بھائی جان، کہو جعفر، حشاش بشاش کوئی بشارت لائے ہو؟ یزید شاہ ملعون مر گیا۔ سبحان اللہ، بس الذي نزل ايامك یہ خانہ کعبہ کی توہین کرنے کا تاوان ہے۔ کم از کم 30-40 دن کا وقت لگتا ہے کہ ایک خبر دمشق سے مکہ پہنچے۔ خلیفہ کم سے کم 1 مہینے پہلے مارا ہے، خانہ کعبہ کل رات کو جلا ہے، تو پھر ان دو حادثوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کس نے ان دو حادثوں کو آپس میں جوڑا ہے؟ افواہ اڑا دی گئی ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ کعبہ کا معجزہ ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ خدا نے آل زبیر کے لیے ہی خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ بھی انہی کا کھیل ہوگا۔ افواہ اڑا دی ان لوگوں نے کہ خانہ کعبہ نے معجزہ دکھایا ہے اور اس نے خلیفہ کو مار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یزید کا مرنا اور خانہ کعبہ کے جلنے کا آپس میں تعلق ہو۔ مثلاً کیسا تعلق؟ اگر تم لوگوں کو یاد ہو تو مزار رسول پر حملہ کرنے سے پہلے لشکر شام کا سپہ سالار مسلم ابن عقبہ تھا، جو مشکوک بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ کسی نے اس واقعے سے عبرت نہیں لی۔ یہ مشکوک بیماری غیب کا تماشا تھا، مزار رسول کی بے حرمتی کا انجام تھا۔ شاید خدا نے اس واقعے میں ایک ساتھ 2 بندوں کو، یعنی خلیفہ اور اس کے لشکر کے سپہ سالار کو شکار کر لیا۔ تو پھر توبہ کر لو اور اس سے پہلے کہ پتھر کے ہو جاؤ ان کی طرف چلے جاؤ۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا خلیفہ کی موت کا خانہ کعبہ کے جلنے سے کیا تعلق ہے؟ عجیب بے وقوف انسان ہو تم۔ خلیفہ شکار پر تھے، ایک تیز ہرن کو شکار کرنا چاہا۔ خلیفہ کا گھوڑا تھا اور ہرن تھی، گھوڑا ہواؤں میں اڑتا ہے اور خلیفہ زمین سے اچھلتا ہے، خلیفہ کا پاؤں رکاب میں رہ جاتا ہے، گھوڑا اسے اس قدر زمین پر گھسیٹتا ہوا جاتا ہے کہ خلیفہ جہاں بحق ہو جاتے ہیں۔ مگر میں نے ایک عجیب سی روایت سنی ہے۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ خلیفہ پیاس لگنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جتنا بھی پانی پیتے تھے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، بہت پیاسے تھے، بالآخر اس قدر پانی پیا کہ خدا معاف کرے پھٹ جاتے تھے۔ تم یقین کر سکتے ہو کہ کوئی اتنا پانی پی لے کہ پھٹ جائے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا، تم ایک بھالو کو پانی سے بھر دو، کیا وہ پھٹ جائے گا؟ نہیں۔ وہی شکار والا قصہ ٹھیک ہے، خلیفہ شکار کا شوقین تھا، شکار پہ بہت جایا کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، ہم تو بالکل الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اتنی طرح طرح کی باتیں سنی ہیں
کہ سمجھ میں نہیں آتا کس پر یقین کریں. بعض کا کہنا ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ خدا کا معجزہ ہے. یہ بات بھی معتبر لگ رہی ہے. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. عمیر کے بیٹے کا کوئی دین نہیں ہے، خدا نہیں ہے، یا خانہ کعبہ پر نہیں گری ہے، دراصل خلیفہ کی جان پر گری ہے. خدا یا معاف کرے. مطلب ہم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ ہم اصحاب الفیل بن گئے تھے. بندہ خدا اصحاب الفیل. اب راہ کے ہلاک ہونے کے بعد اس کی فوج کی باری ہے. ہمارا کیا گناہ ہے؟ جو کچھ کیا سرداروں نے اور صاحبان منصب نے کیا ہے. جو بلا بھی آئے ان کے سر پر آنی چاہیے. میں خانہ کعبہ سے پناہ مانگتا ہوں. خانہ کعبہ کے پتھروں کو اپنے آنسوں سے اس قدر دھوں کہ خدا معاف کر دے. بن باپ کی امت، ہائے بن باپ کی امت، ہائے در بدر ریات، ہائے بن باپ کی امت، ہائے. تمہیں کیا لگتا ہے ابن نمیر کیا کرے گا؟ پتہ نہیں بھائی، انتظار کرنا ہوگا تاکہ کوئی خبر آئے اندر سے. اگر ہوشیار سردار ہوا تو مکہ کے حساب سے دستبردار ہو جائے گا اور دمشق کی طرف نکل پڑے گا. جو بھی جنگ لڑنے پر راضی ہے وہ کھڑا ہو جائے. بیٹھ جائیے. خدا جانتا ہے کہ میں خلیفہ مرحوم سے زیادہ زبیر کے بیٹوں کے خون کا پیاسا تھا، مگر کیا کروں، یہ ہے ہماری لشکر کی حالت. ہر 10 میں سے صرف 2 افراد جنگ کے لیے راضی ہیں. اس جنگ کو آگے بڑھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ہم نے یہ جنگ چند خرافات کی وجہ سے ہاری ہے. ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. یزید بھی 1 ماہ پہلے ایک حادثے کے نتیجے میں مرا ہے. بس نہ کوئی غیب کا ہاتھ تھا، نہ کوئی معجزہ ہوا ہے. اگر میرے پاس کوئی ایسی تلوار ہوتی جو خرافات کو ختم کرنے پر قادر ہوتی تو میں ہرگز ترک جنگ پر راضی نہ ہوتا. نتیجے میں کوفہ تمام علاقوں سے زیادہ متاثر ہوا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ واقعہ کربلا میں کوفیوں کا سب سے زیادہ دخل تھا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قصوروار اور سرزنش کا اہل سمجھتے تھے. تاریخ کی گواہی کے مطابق جس وقت یزید کی موت کی خبر کوفہ آئی، اس وقت ابن زیاد حاکم کوفہ و بصرہ شہر بصرہ میں تھا، اور اس کی غیر موجودگی نے یزید کے مخالفین کے لیے راہیں ہموار کر دیں تاکہ وہ لوگ اس کے خلاف کھلم کھلا قیام کر کے میدان میں آ جائیں. سلیمان سرد خزائی جو کوفہ میں شیعوں کے علماء میں سے تھا اور اپنے آپ کو تواب کہلاتا تھا، کھلم کھلا امویوں کی مخالفت کا پرچم لہرا کر سامنے آ گیا. اے میرے جیسے گناہگاروں، اے اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونے والوں، اے بے وفائی اور اپنی وعدہ خلافی کا اقرار کرنے والوں، اے توابین، اگر ساری عمر بھی اس شہید دشت نینوا پر خون کے آنسو روتے رہے تب بھی ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں. میرے بھائیوں، نورین سید المرسلین، ست النبی حسین ابن علی کی مدد نہ کرنا ایسا گناہ کبیرہ ہے جو فقط ہمارے خون سے دھل سکتا ہے. یہ فتویٰ ہے آپ کے پیر و مرشد سلیمان کا.
जो कफन पोश और आजिम मैदान है, जो भी उनकी मदद करना चाहता है, बिस्मिल्लाह। उमर, हिम्मत से काम लो, बिला ताखीर मिंबर पर जाओ और काम तमाम कर दो। अगर इब्ने ज़ियाद अचानक पहुंच गया तो? अरे उमर, क्या हो गया है तुम्हें? इब्ने ज़ियाद का बसरा में दिल लग गया है। पिछली बार भी कराहियत के साथ आया था, यजीद के धोखे में आ गया था, और फिर इब्ने ज़ियाद बसरा में है। जब तक वो कूफा पहुंचेगा, हम अपनी जगह मजबूत कर चुके होंगे, उसके रास्ते बंद कर देंगे। तुम समझते हो कि हालात इतने आसान हैं कि तमाम कूफी हमारी बैत भी कर लेंगे और कोई हमारी रुकावट भी नहीं बनेगा? इतना डरते हो तो मैं मिंबर पे चले आता हूँ। तुम किसी कम शोहरत वाले की औलाद नहीं हो। मैं अगर तुम्हारे जैसे खानदानी अलकाब वाला होता तो यजीद की मौत की खबर आते ही खलीफा बन गया होता। अगर अभी जल्दी ना करोगे तो कूफा हाथ से निकल जाएगा, शिया हाकिम बन जाएंगे और हम दोनों का कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर ना हो सका तो क्या करेंगे? हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी शिम। उमर, घोड़ा और मैदान सामने है, न हो सका तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा, और तुम किस इज्जत की फिक्र कर रहे हो? जब पानी सर से गुजर चुका हो तो कम और ज्यादा में फर्क नहीं रहता। दिल मजबूत रखो ताकि हम कूफा हासिल कर सकें। हिम्मत से काम लो उमर, हिम्मत से काम लो। और रे को हुकूमत आले अबी वकास का दारुल खिलाफा बना देंगे। तुम्हारा सर फख्र से बुलंद हो तो फिर तुम्हारी कब्रों पर खूने हुसैन तुम लोगों के लिए कम न था कि तुम लोग उनके कातिल को कुर्सी पर बिठाओगे? ऐ ज़ईफ़ा, खुदा का घर चीखो पुकार की जगह नहीं है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतने सारे मर्दों के सामने अपनी आवाज उठाती हो? मर्द? कौन से मर्द? कोई मर्द नजर नहीं आता कि हम शर्माए। कूफे में मर्द होते तो औरतें मैदान में नहीं आती। फर्जंदे रसूल के कातिल कूफे पर हुकूमत करना चाहते हैं। हे कूफे की औरतों, सीने सिपर हो जाओ कि ये लोग तुम्हारी लाशों पर से गुजरे। कूफा अब इतना लावारिस हो गया है कि जिस कुत्ते और गधे का दिल चाहे मिंबर पर चला जाए और कोई आवाज तक ना उठाए। इन्हें दिखा दो कि कूफे की औरतें कूफे के मर्दों से ज्यादा मर्द हैं।
भाइयों, क्या कहूं? ये कहूं कि हकीकत को नहीं जानता था, ये कहूं कि मैंने अपने मौला हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज नहीं सुनी थी, या ये कहूं कि मैं कूफे में कैद में फंसा हुआ था, अपने आप को हुसैन तक नहीं पहुंचा सकता था। मेरे पास कोई बहाना नहीं बचता सिवाय गफलत, गफलत, गफलत। मैंने सुस्ती की, मेरे कदम रुक गए, शैतान ने ईमान पर हमला कर दिया। मुझे जान का खौफ था, लर्ज़ बांदाम हो गया, उठते हुए कदम रोक लिए मैंने, इश्क के काफिले से पीछे रह गया। काश अबू इसहाक कूफे में होता। क्यों फिक्रमंद हो प्यान? डर है कि ये आग भी पहले की तरह जल्दी ना बुझ जाए। क्या मुस्लिम इब्ने अकील का वाकया याद नहीं? कूफे वाले खुशकली की तरह हैं, अचानक उठते हैं और फिर जल्द ही बैठ जाते हैं। काश अबू इसहाक कूफे में होता, काश अबू इसहाक। खुश आमदीद अबू इसहाक, कैसे हो तुम? आपकी दुआएं हैं मेरे आका। अगर मेरा हाफजा साथ दे रहा है तो तुम्हें अब से तकरीबन 1 साल पहले देखा था। ताज्जुब है, तुमने हमें याद कर लिया मुख्तार। इख्तियार होता तो रोजाना आपकी ज़ियारत के लिए दौड़ा चला आता और कदम बोसी करता, मगर अफसोस आले ज़ुबैर मेरे साए का भी पीछा करते हैं। मेरी तमाम आमदो रफ्त उनकी नजरों में है। आज रात इनके पास मुख्तार से ज्यादा अहम काम था, मैंने मौके से फायदा उठाया। ताज्जुब है, ताज्जुब है। आप तो ज़ुबैरियों की बैत में हैं। मैंने सुना है कि उनकी रकाब में काफी अच्छी जंग लड़ी है आपने। वह किस बात का खौफ है? मैंने इब्ने ज़ुबैर की बैत नहीं की है, सौदा किया है। खुदा जानता है कि मेरी कुल तमन्ना इंतकाम हुसैन है। हुसैन, हुसैन, हुसैन। हुसैन का नाम यानी गुर्बत, यानी मसलूमियत, यानी तन्हाई, तन्हाई, तन्हाई। मशीयत लाई थी कि मैं सिफीन में माजूर हो जाऊं ताकि करबला में अपने भाई हुसैन के साथ जा सकूं। काश मैं बीमार ना होता और अपने जवान भाई अब्बास हमारे बनी हाशिम की तरह अपनी जान अपने भाई हुसैन के कदमों में कुर्बान कर देता। खुदाया, अब जबकि तूने मुझे इस अजीम मुसीबत में जिंदा रखा है तो मुझे इस कदर जिंदा रख कि मैं तेरे दस्त इंतकाम से अपने हुसैन के कातिलों का किसास देख सकूं। मर के यजीद बशारत है इस दुआ की कबूलियत की। खुदा की कसम, दश्ते करबला के अश्कियार के सुख चैन न देख पाएंगे। रोज़ वादा नजदीक है मेरे आका।
तुम जंगी लिबास में आए हो उमैर के बेटे, मतलब मैदान जंग में आए हो। बिस्मिल्लाह। जंगजू मर्दों पर जंगी लिबास ही जचता है, इसके अलावा कोई भी लिबास पहनकर आता तो वो इस महफिल के लायक ना होता। मेरे ख्याल से ये साहब मुसब इब्ने जुबैर है, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, मुसब है मेरा भाई। मेरा बहुत दिल चाहता था कि हिजाज के इस मशहूर बहादुर से मैदान में पंजा आजमाई करता। अब भी देर नहीं हुई। नहीं मुसब, वक्त नहीं है। एक लड़ने वाले को अच्छा लड़ने के लिए कोई उम्मीद और दलील चाहिए होती है। मेरी उम्मीद मट्टी तले सो गई है और तुम्हारी तुम्हारे बराबर में है, तो फिर हमारी जंग मुनसिफाना नहीं होगी। तुम्हारी दलील और उम्मीद खुदा होना चाहिए था, न कि यजीद। कौन सा खुदा शेख, जिसकी तुम इबादत करते हो या जिसकी यजीद इबादत करता था? मेरा और यजीद का खुदा क्या मतलब है? ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। खुदा एक है, मुशरिक। हाँ शेख, मैं भी मानता हूं कि खुदा एक है। वो वही गायब है जो कि हाजिर है, और वो हाजिर जो गायब है, जिसे सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है, सर की आंखों से नहीं। वो वही आलिम है जिसके इल्म का अहाता हर चीज पर है। मैं और आप, हम दोनों इंसानों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। हम दोनों के पास हाथ, पांव, पेट और सर है। दोनों के पास आंख, कान और मुंह है। आप खाते और पीते हैं, मैं भी यही करता हूँ। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। आप सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। क्या मेरे और आपके दरमियान कोई शबाहत है? क्या मेरी तबीयत और आपकी तबीयत एक है? तो फिर मान लो कि मेरा खुदा भी तुम्हारे खुदा से मुख्तलिफ हो सकता है, अगरचे हम दोनों उसके लिए एक जैसी सिफात के कायल हैं। ये फलसफा भी यकीनन यजीद का सिखाया हुआ है। इस अकीदे के मुताबिक तो खुदा लातादाद होंगे, और हर शख्स ये दावा कर सकता है कि जिस खुदा को वो मानता है वही बराक है। ये वही दौरान जाहिलियत की बुत परस्ती है। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार बुतों को पत्थरों के या सुनहरे या मिट्टी के मुजस्समों की सूरत में पूजा नहीं जा रहा। इस दौर के बुत खुदा यगाना की तकलीद में देखने के काबिल नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, ये तौहीद का इनकार है। तुम जंग के बारे में बहस करने आए हो या खुदा के बारे में? जंग की क्या खबरें हैं मुख्तार? यजीद की मौत के बाद शामियों में खौफ व हिरास फैल गया है। सुलह और साजिश की बू आ रही है। मुझे ये गुमान है कि आले जुबैर शामियों से बैत लेकर जंग को खत्म कर देंगे। खुदा इस झूठी कौम को रुसवा करे, तो फिर वो इस कदर खून जो मदीने में बहाया गया और खाना काबा की जो तौहीन की गई है, वो इन लोगों की जंग शरीयत की फिक्र में नहीं थी, तलब कुदरत के लिए थी। उनकी खानदान अली से दोस्ती भी मसलिहत से भरपूर है। मुझे शक नहीं है कि ये लोग आले अली से दुश्मनी में यजीदियों से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरे बाबा अली का कौल है मुख्तार। जुबैर अहले बैत का हिस्सा कहलाता था उस वक्त तक जब उसका मनहूस बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। यही अब्दुल्ला बाइस बना कि जुबैर मेरे बाबा के रूबरू मुखालिफ बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाप जुबैर को इस पर आमादा किया कि वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से लड़े, जबकि जुबैर मेरे बाबा से मुज़ाकरात में पीछे हट गया था और लड़ने का इरादा नहीं रखता था। यजीद मर चुका है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम आपकी बैत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमारे साथ शाम चलें।
اور معاویہ ابن یزید کو کرسی سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائیں. ہمیں شام کیوں جانا ہوگا؟ کیونکہ ہم حجاز میں نہیں رہ سکتے. اگر ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کر لی تو معاویہ ثانی کے غضب کا شکار ہو جائیں گے اور ہم شام لوٹ نہیں سکیں گے. البتہ ایک دوسری راہ بھی ہے شیخ. اور وہ دوسری راہ کیا ہے؟ جنگ ختم کر دیں. آپ اجازت دیں کہ ہم حج و عمرہ ادا کر کے شام لوٹ جائیں. کیا حج عمرہ کرو گے؟ اس گھر کے گرد طواف کرنا چاہتے ہو جسے تم نے چلایا ہے؟ جی ہاں. اس آگ لگانے کی ایک حکمت تھی اور اس طواف کرنے کی بھی ایک حکمت ہے. اگر سننے کا حوصلہ ہے تو اس کی حکمت بھی بیان کر دوں؟ نہیں ابن نمیر نہیں. پہلے ہی کافی حد تک آپ کے فلسفے سے پرفیض ہو چکے ہیں. اور رہی آپ کی پہلی رائے تو یہ واضح رہے کہ ہم خانہ کعبہ کی پناہ میں ہیں اور کسی قیمت پر خانہ کعبہ کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں. رہا سوال جنگ ختم کرنے کا تو ہمیں اس مسئلے پر غور کرنا ہوگا کیونکہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر چکا ہے اور ان کو پہلے سے زیادہ بھڑکا دیا ہے. شاید میں ان کے غصے کو نہ روک پاؤں. یہ بھی ممکن ہے کہ میں حرم الہی کی بے حرمتی کرنے والوں کا قتال یا قصاص کروں. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ حیوان عقل اور تدبر نام کی شے بھی کچھ حد تک رکھتا ہے. میرا خیال تھا کہ یہ صرف ایک ایسا درندہ ہے جس کے پاس صرف تیز دانت اور سینگیں ہیں اور عقل سے دور ہے. خوب فلسفے بنا رہا تھا. جی ہاں، مگر اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں. بہت ڈر سا گیا ہے. اسے ڈرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے مصعب، کیونکہ وہ اس لشکر کا سردار ہے جس کے سپاہیوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ان کے سرداروں نے انہیں ذلت، تباہی اور رسوائی کی راہ پر زبردستی گھسیٹا ہے. اگر بہت زیادہ جنگ کی ضد کرے گا تو بعید نہیں ہے اس کے لشکر والے اس کے سر پر ٹوٹ پڑیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کاش آپ اسے خانہ کعبہ کو آگ لگانے کی حکمت بھی بیان کرنے دیتے. میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ سنوں کہ اس بارے میں وہ کون سی من گڑت تفسیر اور وجوہات بیان کرتا ہے. نہیں مصعب نہیں، یہ گروہ یزید کی طرح من چاہے قصے پیدا کرنے میں ماہر ہے. یزید شاعر تھا اور شعراء زیادہ تر شرک آلود طبیعت کے مالک ہیں اور ان کے کہے ہوئے کلام مشرکانہ آیات سے بھرے ہوئے ہیں. خوب مصعب جان، میرا دل اب لشکر شام کی جانب سے پرسکون ہو گیا. اب بہتر رہے گا کہ ہم عراق کو فتح کرنے کی سوچیں. صلح کر لیں؟ کس سے صلح کر لیں؟ ان لوگوں کے ساتھ صلح کر لیں جنہوں نے خدا کے گھر میں آگ لگائی اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی. کیسے صلح کر سکتے ہیں؟ تمام تکلفات اور باتوں کے طول سے گریز کرتے ہوئے توف ہے اس کے باپ کی قبر پر جو آج کے بعد سے مشورہ، مذاکرہ جیسے الفاظ پر عمل کرے. معاویہ کی خشک اور آمرانہ حکومت ہمیشہ میرے لیے شبہ انگیز تھی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بالکل صحیح کام کرتا تھا. نور برسے اس کی قبر پر، نور.
हम लोगों को मशवरे की क्या जरूरत है? ये बातें उन बाशऊर लोगों को ज़ेब देती हैं जो कि हाँ अपनी हुदूद को जानते हैं, हम नहीं जानते। हमने तो जिस पर भी तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। कल से मैं अपने पिछले खुलफा की रविश पर चलूं। आपको कोई एतराज है? आप गुस्से में क्यों हैं हजरत वाला? ये हम हैं जिन्हें शिकवा करना चाहिए, आपको नहीं, जो कि बगैर सोचे समझे काफिर हरबी शामियों से जंग बंदी करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, देख लीजिए, इसे कहते हैं यखनी से ज्यादा गरम देगचा। कौन सा देगचा? कौन सी यखनी? कौन सा मुहावरा है ये क्या तरीका है? कुफार से जहाद करना कोई ढका छुपा हुक्म तो नहीं है। उससे ज्यादा काफिर कौन हो सकता है कि जिसने हरम अमन इलाही को इस तरह आग लगा दी और बिल्कुल रहम न किया, और तुम उससे मुज़ाकरात और मुसालहत करना चाहते हो? क्या हमारे दरमियान यह तय पाया था? सुबह के बेटे, तुम ही कुछ बोलो मुख्तार। हमारे कौल और मुआहदे एक वाहिद खुदा को मानने पर मशरूत थे शेख, और फिलहाल न तुम मेरे खुदा को समझते हो और न मैं तुम्हारे खुदा को। तुम्हारा खुदा इस बात पर मुसिर है कि उसके घर की बेहुरमती का बदला तुम उसके बंदों से लो, जबकि मेरा खुदा अपने घर की बेहुरमती का बदला खुद ले चुका। काबा की बेहुरमती के सबब को मार दिया उसने। मैं सुलह की चाशनी की तरफ राग़िब हूं बनिस्बत जंग की तलखी के। इब्लाए हाजात की कसम, तुम एक इब्लीस हो। इब्लीस तुम्हारे अंदर पल रहा है। तुम्हारी यजीद से जंग शरीयत की खातिर नहीं थी, इक़्तिदार के लिए थी। जशल्लाह की तलवार अब तक दो ग्रोह के खिलाफ थी, अलवी और उमवी। आज के बाद 3 ग्रोह के खिलाफ है। आले जुबैर भी काफिर है और उनका खून हलाल है। चलो। नाफहम आदमी। इस गुरु की मिसाल उस गधे पर सवारी करने वाली किसी है जो जानवर को कोशिश करने के बजाय उसे सीख चुभो देता है, तो फिर जानवर भी चलने के बजाय छलांगे मारेगा और अपने सवार को ऐसा जमीन पर पटक देता है कि उसका भेजा मुंह को आ जाए। ये मलून शरीयत में से सिर्फ फतवे लगाना ही सीख पाया है। अगर जरा सी चाशनी दयानत के तौर पर साथ लेके चलते तो गलत फहमी से दूर न होते। ऐ खुदा, इनकी जड़ों को नाबूद कर दे। काश अली जंग नैरवान में इनकी नस्ल कता कर देते। क्या करें अबू इसहाक? किसके साथ? इस बहरान ज़दा हालात के साथ, लश्कर शाम के साथ, इन खवारिज के साथ जो इस बेशैतान हैं। फौरी तौर पर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। बहुत खूब, गौर करो, गौर करो। खुदाया, नेमतों की फरावानी को इस दस्तरखान के वारिस पर कम ना फरमा। आमीन। आमीन। मुसअब,
कल तुम बसरा की तरफ निकल पड़ो और वहां के लोगों से हमारे लिए बैत ले लो। तो फिर कूफा का क्या होगा? इमारत कूफे का एक भारी मुद्दई मौजूद है जिसे हमें बड़ी नजाकत के साथ अपनी राह से हटाना होगा। मगर आपने तो मुख्तार को पूरे इराक अरब का वादा दिया है और बसरा भी इराक का हिस्सा है। अगर मुख्तार समझ जाए कि आपने वादा खिलाफी की है तो वो बैत तोड़ देगा और हंगामा आराई शुरू कर देगा। तुम बसरा पर हुकूमत करने नहीं जा रहे हो, अपनी खानदानी जायदाद को देखने जा रहे हो और वहां बिलवास्ता लोगों को हमारी बैत की तरफ रग़बत देने जा रहे हो। मगर भाईजान, आप ही ने तो कहा है कि मुख्तार एक खतरनाक हरीफ और भारी मुद्दई है। खास तौर पर उसने हिजाजियों में भी एक खास इज्जत और आबरू कमाई है। मुझे डर है कि वो आपको छोड़ न दे। ये मसले से खाली है कि मुख्तार के होते हुए आपको अकेला छोड़ जाऊं। मुसअब, तुम जाओ और बसरा की फिक्र करो। तुम्हारा भाई मछली के पेट को चीर के निकलना जानता है। ज्यादा मत खाइए भाईजान, मुझे डर है कि कहीं आप मिजाज के उखड़ने में मुब्तला ना हो जाए। नहीं कर सकता मुसअब, नहीं कर सकता। हाँ, जब तो दस्तरखान सामने रहता है शैतान बस वसा करता रहता है। खाना वही शैतान है कि मैं उसके जाल से रिहा नहीं हो सकता मुसअब। जनाब नजदत इब्ने आमिर, क्या हाल है आपके? मत पूछो मुख्तार, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। तुम कहाँ हो मुख्तार? कल रात से अब तक मैंने मक्का और वहां से जंग के चप्पे चप्पे को तुम्हारी तलाश में छान मारा। वो क्यों? आओ चलो किसी कोने में चलकर कुछ गुफ्तगू करें। किस बारे में? इन मौजूदा हालात के बारे में जो इब्ने जुबैर ने इब्ने नुमैर के साथ मिलकर की है। माफ करना शेख, बैत शिकनी करने वालों के साथ तन्हाई और कोने में गुफ्तगू यानी खलीफा के खिलाफ साजिश करना, मेरा फिलहाल बैत शिकनी करने का कोई इरादा नहीं। डर रहे हो? न डरूं? नहीं, तुम अब भी कोई कम ताकत रखने वाले नहीं हो मुख्तार। जंग मक्का में बहुत से हिजाजियों ने तुम्हारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, फिर खिलाफत का लिबास तुम क्यों ना पहनो मुख्तार? खुदा की कसम तुम जुबैर के बेटे से ज्यादा इसके लायक हो। तफर्रुक़ मत फैलाओ शेख, गुनाह है। तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है मुख्तार? जुबैर का बेटा वादा खिलाफ और खयानत का शख्स है। उसका काम निकल गया तो तुम्हें मक्का में से बाल की तरह निकाल देगा। इससे पहले कि मौका हाथ से निकले हम मुत्तहिद हो जाएं और खिलाफत के लिबादी को उसका अधूरा ख्वाब बना कर रख दें। जरा सी गलती कर रहे हो शेख। जुबैर के बेटे ने लिबादा ओढ़ लिया है। अगर जो ओढ़ लिया हो हम ये लिबादा उतार देंगे। मैं उन लोगों के साथ मुत्तहिद नहीं हो सकता जो मेरे मौला अली के सर पर ज़र्ब लगाने पर फख्र करते हैं। तो फिर जंग मक्का में क्यों हमारे साथ मुत्तहिद हुए थे? वो इत्तेहाद मुख्तार का इत्तेहाद नहीं था, वो इब्ने जुबैर का इत्तेहाद था खवारिज के साथ। मैं सिर्फ दरमियानी जरिया था। मैं तो थक गया हूँ। अली का किस्सा तो कब का खत्म हो गया। अब तुम लोग क्या कयामत के दिन तक अली के जख्मी सर को तफर्रुक़े का बहाना बनाओगे? खुदा रसूल की कसम, ये तमाम मुसलमानों के फायदे में है कि आज जुबैरी जल्लादों के खिलाफ मिलकर खड़े हो जाएं। कहो तो एक राज तुम्हारे लिए फाश कर दूं ताकि तुम जान लो कि उसने हाशमियों के लिए क्या ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? वो चाहता है कि तमाम हाशमियों को एक खाई में जमा करके जिंदा जला दे ताकि बकौल उसके
जहन्नुम जमल का इंतकाम ले सके। किससे सुना तुमने? खुद उसी के मुंह से। मेरे इन कानों ने उसकी जबान से ये जुमले सुने। एक दिन वो अपने भाई मुसब के साथ तन्हाई में बैठा हुआ था, मैंने कान लगाए, खुदाया मुझे माफ करना। वो अपनी दिली आरज़ू के बारे में मुसब से गुफ्तगू कर रहा था। उसकी दिली आरज़ुओं में से एक ये थी कि एक खाई में बहुत सारी घास और ईंधन जमा करके हाशमियों के लिए एक जहन्नुम बना दे। मुख्तार, इस वादा खिलाफ गिरोह से अपना दामन बचा लो। इस अकील की राय यह है कि हम जंग में पेशकदमी और पहल से काम न लें, खास तौर पर मक्का और खाना काबा में, जो कि हरम अमन है और उसमें जंग और लड़ाई हराम है, सिवाय इसके कि जहां मजबूर दिफा हूं। इब्न नुमैर भी लश्कर की फरावानी और खाने पीने का सामान कम होने की वजह से कहता है कि हम उसे जल्दी जवाब दें। क्या करें? हाँ, तुम बताओ बिसाक। क्या अर्ज करूं? अपनी राय बताओ मेरे भाई। क्या सुलह पर राजी हो तुम? शामियों में से वो लोग जिन्होंने मदीना में मुसलमानों की नामूस तक की बेहुरमती की या किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाया या तो खाना काबा की बेहुरमती की है, उन्हें जरूर क़िसास किया जाना चाहिए। इब्न नुमैर जैसे लोग यजीद के बाजू हुआ करते थे। उनका जुर्म यजीद से ज्यादा न हो तो उससे कम भी नहीं। शामियों में जो गुनाहगार हैं, उन्हें बेगुनाह शामियों से कैसे जुदा करें? इब्न नुमैर का तो जुर्म और सजा वाज़ेह है, बाकियों का क्या करें? आपकी बात के मुताबिक जिसने भी खाने काबा की तरफ एक पत्थर भी फेंका है वो मुजरिम है, मगर मुजरिमों को कैसे पहचाने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शामियों में से एक एक फौजी को सजा दी जाए, नहीं। आप कुछ भी कर ले मुमकिन है फिर भी कुछ लोग बेकसूर बन जाए और उनका जुर्म साबित भी न किया जा सके। उन लोगों का क़िसास खुदा पे छोड़ा। अब तक आप शाम के सिपाहियों से लड़ रहे थे, अब इब्न नुमैर से तो लड़िए कि जिसका जुर्म वाज़ेह है। जो भी इब्न नुमैर का साथ देगा वो गुनाहगार है। बहुत खूब, कल ऐलान करवा देते हैं कि शामियों का अमान है, सिवाय इब्न नुमैर के, जो खाना काबा की बेहुरमती का असल बाइस था। जो कोई हमारी तरफ आ गया अच्छी बात है, ना आया तो कोई बात नहीं, हम उससे भी लड़ेंगे। उमैर का बेटा बहुत कमजोर पड़ गया है हजरत खलीफा। उसके साथ सख्ती का सलूक करना खलीफा की हुकूमत का चेहरा बदनुमा कर देगा। वो एक खुल्लम खुल्ला मुजरिम है। बहुत खूब, उसको क़िसास कर दिया जाए, बिगड़े हुए को ठीक कर दीजिए, मगर सियासत से कराहियत आमेज चेहरे के साथ नहीं कि सब आपके चेहरे से वहशत खाएं और भागने लगे। कुछ ऐसा कीजिए कि शामी हजरात खुद मुजरिम के हाथ पांव बांध कर मुजरिम को आपके हवाले कर दें और क़िसास के लिए छोड़ दें। शाबाश अब्दुल्ला, आसानात, दुरूद हो तुम पर। ये बेहतरीन राय है, बेहतरीन। खूब, तो आपकी राय क्या है? अर्ज कर रहा हूं, मैंने शामियों के अकीदों से मुताल्लिक एक अजीब सी रिवायत सुनी है, जिसे आप सब सुनेंगे तो ताज्जुब होगा। मदीनतुन नबी पर हमले के दौरान शाम के लश्कर का सालार मुस्लिम इब्न उक़बा था। उसकी मौत के बाद इब्न नुमैर सालार बना। मुस्लिम इब्न उक़बा ने जब मदीने के मुसलमानों को मारा और उनकी नामूस की बेहुरमती की तो बीमार हो गया और बिस्तरे मर्ग पर गिर गया।
اس نے بہت عجیب وصیت کی ہے. ابن عقبہ مرتے وقت یہ کہتا ہے میں نے جو کچھ بھی کیا خدا کی رضا کے لیے کیا ہے. خوب غور کیجیے گا آپ لوگ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے تھا، اور خدا کی قسم میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مدینے کے لوگوں کو مارنے سے زیادہ افضل ہو، اور مجھے آخرت میں اس ثواب کی ہی امید ہے. اللہ اکبر! کیا واقعاً اس نے ایسی بات کی ہے؟ جی ہاں، آپ ایسے گروہ کے مد مقابل کھڑے ہیں. جب تک اس گروہ کے عقیدے کو نہیں بدلیں گے، جب تک دین کی حقیقت انہیں نہیں سمجھا دیتے، جب تک انہیں یہ نہیں دکھا دیں گے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، محال ہے کہ ان پر بغیر تکلیف کے حکومت کریں. وہ حالات جو اس وقت خانہ کعبہ کی برکت سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ آپ شامیوں کے دلوں کو تسخیر کریں. خانہ کعبہ جلا تاکہ یہ لوگ رائے ہدایت پر آ جائیں، تو پھر غیر سنجیدہ افکار سے خانہ کعبہ کے معجزے کو تباہ مت کیجیے. بنی ہاشم ایک مغرور اور متکبر قوم ہے. مجھے اپنے خطبوں میں رسول خدا کا نام گرامی لانے میں دقت ہوتی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام سن کر ان کے خاندان والے سینہ پھلائیں، اکڑیں، فخر و مباحات کرے. خدا نے اس خاندان کو ابو لہب کے نام کے بہانے لعنت کی ہے، جو کہ صرف کچرے اور کوڑے کی مثال ہے. اس گروہ کی سزا فرض ہے، اور امید کرتا ہوں کہ خدا مجھے اس عمل خیر کی جزائے خیر دے انشاءاللہ.